السلام علیکم دوستوں، مجھے امید ہوگی کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین اکرام، جو سوال کیا گیا ہے وہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور ایسی صورت میں اگر بارش ہو جائے اور بارش کے پانی سے اگر کپڑے بھیگ جائیں تو کیا ان کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھنا جائز ہوگا کیا نہیں؟ تو دیکھیے ناظرین اکرام، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ دیکھیے ناظرین اکرام، جو سوال کیا گیا ہے وہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور ایسی صورت میں اگر بارش ہو جائے اور بارش کے پانی سے اگر کپڑے بھیگ جائیں تو کیا ان کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھنا جائز ہوگا کیا نہیں؟ تو دیکھیے ناظرین اکرام، درست مسئلہ یہ ہے گا کہ اگر بارش کے پانی سے کپڑے بھیگ جائیں تو ایسی صورت میں ان کپڑوں کو پہن کے نماز پڑھنے میں کوئی قباحت یا کراہت وغیرہ نہیں ہے، بالکل پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس میں کوئی قباحت یا کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ دیکھیے ناظرین اکرام، جو بارش کا پانی ہوتا ہے وہ پانی پاک ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر بارش کے پانی سے اگر کپڑے بھیگ جائیں اور وہ کپڑے خشک ہو گئے، یعنی کہ جو پانی سے نچڑ رہے تھے اور ایسی صورت میں اگر وہ کپڑے سوکھ گئے یعنی کہ خشک ہو گئے اور واقعی لگتا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو ہمارے کپڑوں سے پانی نہیں ٹپکے گا، تو ایسی صورت میں اگر وہ کپڑے خشک ہو گئے تو ایسی صورت میں اگر کوئی شخص انہی کپڑوں کو پہن کے اگر نماز پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت یا کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ بالکل اگر ایسی صورت میں اگر بارش ہوئی اور بارش کے پانی سے اگر وہ کپڑے پہ بھیگ گئے اور انہی کپڑوں کو پہن کر اگر کوئی نماز کو پڑھتا ہے تو بالکل نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت یا کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ تو دیکھیے ناظرین اکرام، سیدھا اور درست مسئلہ یہ ہے گا کہ اگر کوئی شخص بارش کے پانی میں بھیگ گیا ہے یا اس کے کپڑے بھیگ گئے ہیں تو ایسی صورت میں اگر وہ انہی کپڑوں کو پہن کے اگر نماز کو پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی قباحت یا کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ نہ ہی بارش کے پانی سے کپڑے ناپاک ہوں گے، نہ ہی بارش کا پانی ناپاک ہوتا ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے تو بالکل پڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت یا کراہت وغیرہ نہیں ہے۔ دیکھیے ناظرین اکرام، جو دوسرا سوال کیا گیا ہے وہ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی رقم قرض دی ہوئی ہے اور ایسی صورت میں اس رقم کی بنا پر اس پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو کیا ایسی صورت میں اگر رقم نہ ملنے کی بنا پر اس پر قربانی واجب ہوگی کیا نہیں؟ تو دیکھیے ناظرین اکرام، درست مسئلہ یہ ہے گا کہ اگر کوئی شخص اپنی رقم کو کسی شخص کو دے دی اور ایسی صورت میں اگر اس نے اس سے تقاضا کیا، یعنی کہ اس سے کہا کہ اب میری رقم میرے کو واپسی کر کے میرے کو قربانی کرنا ہے، تو ایسی صورت میں اگر تقاضا کرنے کے بعد بھی اگر وہ شخص رقم کو نہیں دے رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت بھی نہیں ہے کہ اور اتنا مال بھی نہیں ہے کہ اس مال کو بیچ کر قربانی کر سکے، صرف ایک یہی جو رقم دی ہے اسی رقم کی بنا پر قربانی واجب ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے اب قربانی کرنا واجب نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے گا۔ لیکن ناظرین اکرام، اگر تقاضا کرنے کے بعد اگر جو پیسہ دیا ہے اور جس پیسے کی بنا پر انسان پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ پیسہ مل جائے اور وہ پیسہ ملنے کے بعد اگر وہ قربانی کرواتا ہے تو قربانی کروانا بالکل جائز ہوگا، اور اگر پیسہ نہیں ملا یعنی کہ تقاضا کرنے کے بعد اور اس سے بولا کہ پیسہ دے میرے کو قربانی کرنا ہے اور کافی تقاضا کیا اور ایسی صورت میں اس نے پیسہ نہیں دیا تو اب اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے قربانی کرنا واجب نہیں ہو۔ دیکھیں ناظرین اکرام، جو رقم تھی وہ قرضے کی صورت میں دے رکھی ہے اور اسی رقم کی بنا پر قربانی واجب ہو رہی ہے، اور کافی تقاضا کرنے کے بعد یعنی کہ جس کو رقم دی ہے اس سے کافی تقاضا کیا جائے اور کافی تقاضا کرنے کے بعد بھی اگر وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور ایسی صورت میں اگر قربانی کا وقت نکل جائے تو اس پر ایک بکرے کی
یا किसी भी जानवर का सदका उतना पैसा करना भी वाजिब नहीं होगा। तो देखिए नाज़रीन इकराम, सीधा सीधा और दुरुस्त मसला ये है कि अगर किसी को रकम दी और उससे काफ़ी तकाज़ा करने के बाद अगर रकम नहीं मिलती है तो ऐसी सूरत में उस शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। और देखिए नाज़रीन इकराम, अगर तकाज़ा करने के बाद अगर उसने वो रकम दे दी कि जिस रकम की बिना पर कुर्बानी वाजिब हो रही थी, तो ऐसी सूरत में अब उस पर कुर्बानी करना वाजिब होगा। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि जो जर्सी गाय होती है उसका दूध पीना जायज़ होगा क्या नहीं, जिसको हम अमेरिकन गाय बोलते हैं। सुना है कि उसमें कुछ ऐब खिंजीर के पाए जाते हैं, तो क्या ऐसी सूरत में उस गाय को पालना या उस गाय को घर में रखना या उसका दूध पीना जायज़ होगा क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि जो जर्सी गाय होती है उसको पालना या उसको घर में रखना या उसका दूध पीना ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, उसमें कोई भी ऐब खंजीर का नहीं पाया जाता है। अलबत्ता ये तमाम बातें मन गढ़ंत बातें हैं, इनकी कोई हकीकत नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, उस गाय को पालना और उसको घर में रखना और उसका दूध पीने में कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। बिल्कुल गाय को पाल भी सकते हैं और घर में भी रख सकते हैं, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। जो अमेरिकन गाय होती है जिसको हम जर्सी गाय बोलते हैं, उसको घर में रख भी सकते हैं, उसको पाल भी सकते हैं और उसका दूध भी पी सकते हैं, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है और उसमें कोई भी ऐब खंजीर के नहीं पाए जाते हैं। तो ऐसी सूरत में उसको घर में रखना, उसका दूध पीना ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। उसको घर में रखने की बिल्कुल इजाज़त है और उसका दूध पीने में कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अगर कोई शख्स किसी भी खुशी की बिना पर अगर हाथों में मेहंदी लगवाता है तो क्या उसके लिए ये लगवाना, हाथों में मेहंदी लगवाना जायज़ होगा क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि अगर कोई शख्स किसी भी खुशी की बिना पर अगर हाथों में मेहंदी लगवाता है तो उसके लिए मेहंदी लगवाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। देखिए नाज़रीन इकराम, हर किसी शख्स के लिए मेहंदी लगवाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और ना ही हमको इसकी इस्लाम इजाज़त देता है। अलबत्ता ये सिर्फ़ अगर कोई शख्स किसी भी खुशी की बिना पर या अपने ही आप से लगाता है तो ऐसी सूरत में किसी भी सूरत में मर्द के लिए खुशी की बिना पर या बिना खुशी की बिना पर भी मेहंदी लगवाने की इजाज़त नहीं है और ना ही वो लगवा सकता है। मर्द के लिए मेहंदी लगवाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर औरत अगर अपने हाथ या पैर में मेहंदी लगाती हैं तो उनके लिए इजाज़त है और इस्लाम हमको इसकी इजाज़त भी देता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर औरत हाथ या पैर में लगवाना चाहती है तो बिल्कुल लगवा सकती हैं, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। लेकिन नाज़रीन इकराम, मर्द के लिए हाथ या पैर में या किसी भी जगह पर मेहंदी लगवाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है और ना ही हमको इसकी इस्लाम इजाज़त देता है। तो देखिए नाज़रीन इकराम, ये तमाम बातें गलत हैं और हर किसी शख्स को चाहिए कि इन बातों से बचे और हाथों में मेहंदी ना लगवाए और हाथों में मर्द के लिए मेहंदी लगवाना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। लेकिन नाज़रीन इकराम, अगर औरत हाथ में मेहंदी लगाती है या पैर में लगाती है तो वो बिल्कुल लगा सकती है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, औरत के लिए बिल्कुल जायज़ हैगा। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अगर किसी शख्स ने किसी जानवर को ज़िबह किया और ऐसी सूरत में ज़िबह करने के बाद अगर उसके पेट में बच्चे निकल आए तो क्या ऐसी सूरत में उस जानवर का गोश्त खाना जायज़ होगा क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला यह है कि अगर कोई शख्स किसी जानवर को ज़िबह कर रहा है और ऐसी सूरत में अगर उस जानवर के पेट में बच्चे निकल आए तो क्या ऐसी सूरत में उस जानवर का गोश्त खाना जायज़ होगा क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि अगर कोई शख्स किसी जानवर को ज़िबह कर रहा है और ऐसी सूरत में उसके पेट में बच्चे निकल आए
تو ऐसी सूरत में उस जानवर का गोश्त खाने में कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, बिल्कुल खा सकता है। तो देखिए नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स किसी जानवर को ज़िबा करे तो ज़िबा करने से पहले देख ले कि ये जानवर जिसको हम ज़िबा कर रहे हैं वो हामला तो नहीं है। अलबत्ता ऐसी सूरत में अगर जो जानवर ज़िबा किया अगर उसके पेट में बच्चे निकल आए और ऐसी सूरत में अगर बच्चा ज़िंदा निकला तो ऐसी सूरत में उसको भी ज़िबा करना ज़रूरी होगा। तो देखिए नाज़रीन इकराम, ऐसी सूरत में अगर कोई किसी भी जानवर को ज़िबा करे तो उसको चाहिए कि सबसे पहले वो उस जानवर को देखे कि ये जानवर हामला तो नहीं है। तो बेहतर यही है कि अगर कोई जानवर हामला हो और अगर उसके पेट में बच्चे हों तो ऐसी सूरत में उस जानवर को ज़िबा करना ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। तो देखिए नाज़रीन इकराम, अगर किसी शख्स से गलती की बिना पर अगर कोई जानवर ऐसा ज़िबा हो गया कि जिसके पेट में बच्चे निकल आए और वो जानवर हामला था, तो ऐसी सूरत में अगर उसका गोश्त कोई खाना चाहता है तो बिल्कुल खा सकता है। इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, उसका गोश्त खाने में कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, बिल्कुल खा सकते हैं। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अगर कोई शख्स नमाज़ पढ़ रहा है और उस शख्स को सिर्फ एक ही सूरत याद है, तो क्या ऐसी सूरत में अगर वो हर रकात में एक ही सूरत पढ़ता है तो क्या उसकी नमाज होगी क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये हैगा कि अगर कोई शख्स नमाज को पढ़ रहा है और ऐसी सूरत में अगर उसको एक ही सूरत याद है, उसके अलावा कोई दूसरी सूरत याद नहीं है, अगर वो नमाज को पढ़ रहा है तो उसकी नमाज होगी क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये हैगा कि अगर कोई शख्स नमाज को पढ़ रहा है, अगर उसको एक ही सूरत याद है और अगर वो हर रकात में एक ही सूरत को पढ़ रहा है तो उसकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। तो देखिए नाज़रीन इकराम, बेहतर यही है कि अगर जो शख्स नमाज़ पढ़ रहा है उसको चाहिए कि वो और सूरतों को याद करे। अलबत्ता अगर कोई शख्स हर रकात में एक ही सूरत को पढ़ रहा है और उसको वही सूरत याद है, तो ऐसी सूरत में अगर वो नमाज को पढ़ता है तो नमाज तो हो जाएगी, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। अगर वो मुकम्मल तरीके से हर रकात में एक ही सूरत को पढ़ रहा है और उसको कोई दूसरी सूरत याद नहीं है, तो ऐसी सूरत में अगर वो नमाज को मुकम्मल तरीके से पढ़ रहा है और हर रकात में वही सूरत पढ़ रहा है, तो ऐसी सूरत में उसकी नमाज हो जाएगी, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, बिल्कुल नमाज हो जाएगी। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अगर कोई शख्स सदक़ाए फ़ित्र ईद के मौके पर नहीं निकाल पाया तो क्या अब वो ईद के बाद अगर सदक़ाए फ़ित्र निकालना चाहें तो निकाल सकता है क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये हैगा कि अगर कोई शख्स सदक़ाए फ़ित्र ईद के मौके पर नहीं निकाल पाया तो ऐसी सूरत में अगर वो शख्स ईद के बाद अगर सदक़ाए फ़ित्र निकालना चाहता है तो क्या उसका अदा होगा क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये हैगा कि अगर कोई शख्स सदक़ाए फ़ित्र ईद के बाद अगर निकालता है तो उसका अदा हो जाएगा, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है, बिल्कुल निकाल सकता है। तो देखिए नाज़रीन इकराम, सदक़ाए फ़ित्र ईद की नमाज से पहले अदा करना ये बेहतर है और करना चाहिए। और देखिए नाज़रीन इकराम, अगर कोई ऐसा वक्त आ गया कि ईद के मौके पर अगर कोई शख्स सदक़ाए फ़ित्र अदा नहीं कर सका और अगर वो ईद के बाद अब अगर सदक़ाए फ़ित्र अदा करना चाहता है तो क्या उसका अदा होगा क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, अगर कोई शख्स करेगा तो उसका हो जाएगा, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है और बिल्कुल कर भी सकता है, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। अगर कोई सदक़ाए फ़ित्र अगर कोई ईद के बाद करता है तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन बेहतर और अफजल तरीका यही है कि ईद की नमाज से पहले सदक़ाए फ़ित्र अदा कर दिया जाए। तो देखिए नाज़रीन इकराम, हर शख्स पर सदक़ाए फ़ित्र 2 किलो 45 ग्राम होता है, तो उसी के तरीके से आप अगर सदक़ाए फ़ित्र ईद के बाद अगर अदा कर रहे हैं तो बिल्कुल हो जाएगा, इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। अगर कोई शख्स
किसी मजबूरी की बिना पर अगर ईद के वक्त पर अदा नहीं कर पाया, अगर वो ईद के बाद कर रहा है तो बिल्कुल उसका सदका फितर अता होगा। इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह नहीं है। अगर कोई शख्स करेगा तो उसका ज़रूर अदा हो जाएगा। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अगर कोई शख्स गुस्ल कर रहा था और गुस्ल के दौरान अगर एक फ़र्ज भूल गया तो क्या ऐसी सूरत में अगर उसको लिबास पहनते वक्त अगर याद आया तो क्या उस पर दोबारा गुस्ल करना वाजिब होगा क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि अगर कोई शख्स गुस्ल कर रहा था और गलती से एक फ़र्ज छूट गया तो क्या ऐसी सूरत में अगर वो लिबास पहनते वक्त अगर उसको याद आया तो क्या उस पर दोबारा गुस्ल करना फ़र्ज होगा क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि अगर कोई शख्स गुस्ल कर रहा था और ऐसी सूरत में अगर एक भी फ़र्ज छूट गया तो ऐसी सूरत में अब वो लिबास पहनते वक्त अगर उसको याद आया तो उसको चाहिए कि वो दोबारा गुस्ल करे। अलबत्ता गुस्ल में 3 फ़र्ज होते हैं और तीनों फ़र्जों को अदा करना ये हर गुस्ल करने वाले पर फ़र्ज होता है। तो अलबत्ता अगर लिबास पहनते वक्त अगर किसी को याद आया कि गुस्ल में एक फ़र्ज छूट गया है तो ऐसी सूरत में उसको चाहिए कि वो लिबास को उतारे और दोबारा गुस्ल करे। अलबत्ता अगर गुस्ल में एक भी फ़र्ज छूट गया तो गुस्ल नहीं होगा। अगर गुस्ल नहीं होगा तो आप पाक नहीं होंगे और पाक नहीं होंगे तो आप नमाज अदा नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है, उसको चाहिए कि वो दोबारा गुस्ल करे और उस पर गुस्ल फ़र्ज। देखिए नाज़रीन इकराम, जो दूसरा सवाल किया गया है वो सवाल ये किया गया है कि अगर किसी शख्स के हाथ में से कुरान शरीफ या कुरान शरीफ के पारे छूट कर ज़मीन पे गिर जाएं तो क्या उस पर उनके वज़न के बराबर उन पर सदका करना वाजिब होगा क्या नहीं। तो देखिए नाज़रीन इकराम, दुरुस्त मसला ये है कि अगर किसी शख्स के हाथ में से कुरान शरीफ या कुरान शरीफ के पारे छूट कर ज़मीन पर गिर जाएं तो ऐसी सूरत में उस पर उनके वज़न के बराबर सदका करना ये वाजिब नहीं है। अलबत्ता अगर किसी शख्स से गलती की बिना पर कुरान शरीफ या कुरान शरीफ के पारे ज़मीन पर गिर जाएं तो उसको चाहिए कि वो अदब के साथ उठाए और उनको चूमे और सीने से लगा ले। अलबत्ता अगर ऐसी कोई भी सूरत नहीं है कि अगर किसी शख्स से कुरान शरीफ या कुरान शरीफ के पारे ज़मीन पर गिर जाएं तो उनके वज़न के बराबर सदका करना चाहिए, ये कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। तो देखिए नाज़रीन इकराम, बेहतर यही है कि उसको चाहिए कि वो सदका ना करे बल्कि अल्लाह से तौबा करे और ये गलती ना करे। तो देखिए नाज़रीन इकराम, इसमें ये नहीं है कि अगर किसी शख्स के हाथ में से कुरान शरीफ या कुरान शरीफ के पारे छूट के गिर जाएं तो उसके वज़न के बराबर गेहूँ या चावल का सदका करे, तो ऐसी कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है और ना ही इसमें कोई कबाहत या कराहत वगैरह है। लेकिन बेहतर यही है कि अगर किसी शख्स के हाथ में से छूट कर कुरान शरीफ या कुरान शरीफ के पारे गिर जाएँ तो उसको चाहिए कि वो तौबा करे और आइंदा ये हरकत ना करे। तो देखिए नाज़रीन इकराम, इसमें ये नहीं है कि अगर कुरान शरीफ गिर जाए या कुरान शरीफ के पारे गिर जाएँ तो उनके वज़न के बराबर आपको सदका करना चाहिए, ये कोई हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। आपको चाहिए कि आप तौबा कर लें। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद होगी कि आप मसला समझ गए होंगे। अगर नाज़रीन हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और नाज़रीन इकराम, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।